Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad. Today we will discuss about the basic properties of the discrete Fourier transform, that is DTFT. In the last lectures we had discussed about the DTFT for just remind you, if you have a discrete time signal x n and its Fourier transform DTFT is x e की power j omega, then this is defined as summation n is equals to minus infinite to plus infinite x n into e की power minus j omega n. This is the basic mathematical representation of the discrete time signal. In this lecture we will discuss some basic properties of the DTFT. First one is the periodicity property. Suppose means the spectrum of the DTFT is the periodic and the periodicity is 2 pi. In this slide you can see that you have a discrete time signal x n and the discrete Fourier transform is x e की power j omega, and here x e की power j omega plus 2 pi is equals to x e की power j omega. Means in the last lectures I told you the Fourier transform, discrete time Fourier transform, if you have a signal x n and the Fourier transform is x e की power j omega, then x e की power j omega is the periodic signal and the periodicity is 2 pi. That is why if we talk about the inverse DTFT, means if you have a signal x e की power j omega, इसका अगर हम इनवर्स DTFT लेते हैं, then it is defined as 1 upon 2 pi integration from minus pi to pi x, this will be equals to x n is equals to x e की power j omega into e की power j omega n d omega. Here you can also observe that there is a integration, means the spectrum is continuous time signal and periodic signal and the periodicity is x e की power j omega. This is the basic property of the DTFT signal. Okay. Next property is the linearity property, means if you have a signal, if you have a system which perform the DTFT and the first signal is x 1 n and the outcome of this system is x 1 e की power j omega, and if you have another signal x 2 n and the DTFT of this signal is x 2 e की power j omega, then if we take the linear combination of these inputs, means a x 1 n plus b x 2 n, and if we take the linear combination of these input, then the output of these linear combined signal will be the linear combination of individual outputs, means linear combination of x 1 e की power j omega and x t e की power j omega, means a x 1 e की power j omega plus b x 2 e की power j omega. This is the linear combination of the output जब आपने x 1 और x 2 यहाँ पे DTFT लिया था. ठीक है, दिस इज द बेसिक. जैसे हमने लास्ट फोरियर सीरीज में भी देखा था और कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, इसके डेरिवेशन की बात करेंगे सेम ही होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मीन्स इफ यू हैव ए सिग्नल, सिमिलरली हम सबके लिए एक ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि वी हैव ए सिग्नल एक्स एन
and the Fourier transform of xn is represented by x e की power j omega. So if you have a signal xn और उसी को आपने n यूनिट शिफ्ट कर दिया, n नॉट यूनिट, यू आर शिफ्टिंग n नॉट यूनिट, इट मे बी राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है. xn प्लस n नॉट भी हो सकता है, xn माइनस n नॉट भी हो सकता है. एंड इफ आफ्टर द shifting the input signal xn, if you calculate the dTFT, then it will come e की पावर माइनस j omega n naught x e की पावर j omega. And similarly, if you are shifting the signal which comes in the frequency domain in omega naught unit, similarly ये भी आपका राइट शिफ्टिंग हो सकता है और आपका लेफ्ट शिफ्टिंग दोनों हो सकता है. यानी x e की पावर j ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट भी हो सकता है और e की पावर j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट भी हो सकता है. इन दिस केस you will get the signal in time domain e की पावर j ओमेगा नॉट n xn. या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि if you have a discrete time signal xn and if you are multiplying this signal by e की पावर j omega naught n, then अगर इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करके if you are taking the Fourier transform, then you will get the shifted version of the signal or shifted version of the spectrum. Okay, so यहाँ पे आपका टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो रहा है एंड यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रहा है. दैट्स वाई दिस इज द टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री. सिमिलरली इफ यू हैव ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन, अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं दैट इज एक्स कॉन्जुगेट एन, एंड आफ्टर टेकिंग द कॉन्जुगेट द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी एक्स कॉन्जुगेट e की पावर माइनस j ओमेगा. मीन्स e की पावर माइनस j ओमेगा और यहाँ पे फिर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी ओमेगा की जगह माइनस j, वहाँ प्लस ओमेगा की जगह माइनस j ओमेगा आ जाएगा, फिर उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे. दैट्स वाई दिस इज द कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन इज द, एंड in this lecture we are not हम इसको प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने फोरियर सीरीज और कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में इन सब के प्रूफ देख रखे हैं. सो सिमिलरली जैसे उसके हैं वैसे ये भी हैं. नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएशन एंड एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी. दिस इज द न्यू वन प्रॉपर्टी. थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पहले की प्रॉपर्टीज की तरह. तो अगर आपका एक सिग्नल एक्स एन है एंड सपोज करते हैं, सपोज इट्स कि आपने उस सिग्नल को एक यूनिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एक्स एन माइनस वन. सो एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वी नो दैट इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ई की पावर जे ओमेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई की पावर जे ओमेगा. ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से 1 माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई की पावर जे ओमेगा लिखा हुआ है. यानी एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म स्लाइड में रिप्रेजेंट किया गया है. हम अपनी बात को समझने के लिए हम एक सिग्नल वाई एन कंसीडर करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाई समेशन एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स एम. मीन्स हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो वी कैन राइट दैट दिस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू एंड सो ऑन, एंड अगेन this can be x minus 1 plus x minus 2 and so on. माने कि ये सिग्नल, इस सिग्नल का एक छोटा सा पार्ट ये सिग्नल ले लिया गया है, ठीक है. तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर हम इसी को वाई एन हमने ले लिया, वाई एन माइनस एन लें तो एक्स एन माइनस वन एक्स एन बन जाएगा. यानी अगर हम आपका कोई एक सिग्नल वाई एन है
और उसमें से वाई एन माइनस वाई एन ये दिया हुआ है आपका, और उसी में से हम वाई एन माइनस यानी एक यूनिट शिफ्ट कर दें तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ एक्स एन बचेगा। ओके, ये सिंपल से लॉजिकल कंसेप्ट है जिसको समझने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो वी माइट कंक्लूड दैट द ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन शुड बी रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन। क्या करना पड़ेगा, इसको 1 माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज पार्शियली करेक्ट, बट as with the continuous time interpolation property there is more involvement like this mathematical equation which is summation m is equals to minus infinite to n. We can write that x m का dtft अगर हम लेंगे तो this become like this manner, means you will get 1 upon 1 minus e की power j omega plus pi e की power j omega naught into summation k is equals to minus infinite to plus infinite delta omega minus 2 pi k. This is the very important mathematical expression for the analysis of accumulation and difference equation. So, we must have to remember to better understand. Let's have a look example, very simple example. We know that the DTFT of the impulse function is 1 and अब देखो impulse ये हमको पता है, and the relation between the step function and impulse function we also know that. अगर हमने सपोज करो यहाँ पे impulse function को gn से रिप्रेजेंट किया है तो स्टेप फंक्शन को देखो, दिस इज योर डेल्टा एन सिग्नल. व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज 1 एट द n इज इक्वल टू 0. इसी को अगर एक यूनिट शिफ्ट कर दें मीन्स डेल्टा n माइनस 1, फिर इसी को एक यूनिट और शिफ्ट कर दें डेल्टा n माइनस 2 एंड सो ऑन. इसको शिफ्ट करते जाएं और सबको ऐड कर दें तो जो आपका सिग्नल मिलेगा सबको ऐड करने के बाद वो इस तरह से मिलेगा 0 1 2 3 4 मीन्स, और ये सिग्नल क्या होता है? UN होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल. ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा n एंड UN. सो here unit step is a running sum of the unit impulse. That's why we can write that if this is the unit step, if this is the unit step, then we can write xn is equals to summation m is equals to minus infinite to infinite gm. Okay, and यहाँ पे देखो अगर इस तरह से accumulation की प्रॉपर्टी अगर आपके सामने आती है तो हमको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है. सेम कंसेप्ट इसमें भी है. हमको इम्पल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो अगर रनिंग सम की कोई कंसेप्ट आ रहा है तो वी हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा, और जो आपका सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, सॉरी इम्पल्स सिग्नल दिया हुआ है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन, प्लस पाई ई की पावर जे ओमेगा नॉट. सेम जो फार्मूला वही हमने लिखा डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के, विच इज डिफाइंड एज, अब देखो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है 1. देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये वैल्यू हमने 1 रख दिया, एंड पाई ई की पावर जे ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वी कैन गेट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल UN इन डिस्क्रीट टाइम. ठीक है, तो जनरल जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. इस तरह का कंसेप्ट रनिंग अक्यूमुलेशन वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, तभी जाके हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल का निकाल सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी.
वाई एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एन। अगर सपोज करते हैं वाई एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एन, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वाई का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मीन्स फोरियर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज डिफाइंड एज समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वाई एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। दिस इज हमने क्या करा है, डी टी एफ टी में के फार्मूले में सिर्फ फार्मूले में पुट कर दिया, वाई एन इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एन है, सो वी कैन राइट x minus n here। और अगर हम m, if we replace m equals to minus n की जगह हम m लेके आ जाएंगे, then we are able to get x e की पावर माइनस j ओमेगा n। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, मीन्स अगर हम इसको फोल्डिंग लेते हैं then we will get the Fourier transform as x e की पावर माइनस j ओमेगा। This is a time reversal property. Next one is the time expansion property, means x at, there is some mistake, there should be x n, x a n, डी टी एफ टी लेंगे तो 1 अपॉन मॉड ए एक्स ई की पावर, ये हो जाएगा x ई की पावर j ओमेगा बाई ए। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, चूंकि क्या है डी टी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल t की जगह हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और x ओमेगा की जगह x e की पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई वी इम्प्रूव दिस इक्वेशन। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन मीन्स अगर आपका कोई सिग्नल दिया हुआ है एक्स एन और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई की पावर j ओमेगा है, और इफ़ यू आर डिफरेंशिएटिंग that equation, then you are able to get the Fourier transform as, means xn है, xn है, इसका Fourier transform x e की पावर j ओमेगा है, then n x n का Fourier transform होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ x e की पावर j ओमेगा इंटू j ओमेगा। अगर हम इसको चाहें तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी आगे समझ सकते हैं। ओके, सेम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर। पार्सेवल्स रिलेशन, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। कोई सिग्नल एक्स एन है, अगर हम उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं इन द टाइम डोमेन, इफ वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स एन, देन in the frequency domain we can also calculate the energy of that signal like 1 upon 2 pi integration from minus pi to pi x e की power j omega square mod square, remember that this one, into d omega। तो हम चाहे टाइम डोमेन में एनर्जी निकालना हो, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी निकालना हो, अगर हमारा सिग्नल चाहे टाइम डोमेन में दिया है चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल या पार्सेवल्स रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, सेम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में वही है। टाइम डोमेन में अगर आपका दो सिग्नल कन्वल्यूट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे। इफ़ यू हैव ए सिंगल सिग्नल एक्स एन एंड द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एट एक्स ई की पावर j ओमेगा एंड अनदर सिग्नल एच एन, द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एच एन इक्वल्स टू ई की पावर j ओमेगा, देन if we want to convolute xn and hn, then in frequency domain x e की power j omega and h e की power j omega will be multiplied. This is a simple concept for the convolution property. To better understand, let's have a look example. Have a look at example where xn and hn are given. hn is defined a की power n u n and xn is defined b की power n u n, where alpha की power n है, beta की power n है. So mod alpha is less than 1 and mod beta is less than 1. So यहाँ पे
we know that the Fourier transform of a की power n u n is this one, and यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, बीटा है, सेम। अब देखो हमको यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है वाई एन निकालना। वी हैव टू कैलकुलेट वाई एन, वी हैव टू कैलकुलेट वाई एन। एक तो क्या तरीका है, एक्स एन और एच एन को कन्वल्यूट कर दें, कन्वल्यूशन की प्रॉपर्टी लगा के, समेशन के इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स के इंटू एच एन माइनस के, ये कन्वल्यूशन की फॉर्मूला होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में करा था। दिस इज द लेंदी प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पे हम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करके कैसे कर सकते हैं, दोनों का हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वाई ई की पावर जे ओमेगा। तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट वाई ई की पावर जे ओमेगा like this manner, simple multiplication. And after this multiplication our purpose is to get yn, means the signal in the convolution convoluted signal in the time domain. So हमको क्या करना है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। अब ये सिग्नल दिया है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम पार्शियल एक्सपेंशन टेक्निक या पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक हम इस्तेमाल करें तो हम आसानी से कर सकते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। दिस विल बिकम ए बाई वन माइनस ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस जे ओमेगा प्लस बी अपॉन वन माइनस बीटा ई की पावर माइनस जे ओमेगा। वेरी सिंपली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दिस विल कम अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा एंड बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा माइनस बीटा। एंड आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू in this equation, after the putting the value of a and b in this equation, you are able to get this equation. Simply you are able to get this equation, means this will become alpha upon alpha minus beta into 1 upon 1 माइनस अल्फा ई की पावर माइनस जे ओमेगा। सिर्फ मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला अपने आप समझ जाओगे। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये ए की पावर अल्फा की पावर एन यू एन ही तो लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, बीटा की पावर एन यू एन लिखा हुआ है। आफ्टर सम मैथमेटिकल अरेंजमेंट यू आर एबल टू गेट 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। मीन्स हमने क्या करा है, अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो हियर you can get 1 upon alpha minus beta into alpha n plus 1 u n and minus beta की power n plus 1 u n. If we put alpha is equals to beta, then we are if we put in this equation alpha is equals to beta, then in this equation हमको यहाँ से नहीं यहाँ पे बात करना, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर बराबर हो गई है देन वी कैन गेट वाई ई की पावर जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ई की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे फिर वही हमको प्रॉपर्टी लगानी है, तो देन वी कैन गेट जे अपॉन अल्फा ई की पावर जे ओमेगा डी अपॉन डी ओमेगा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ई की पावर माइनस जे ओमेगा। Similarly, we can put the frequency differentiation property, and after the applying frequency differentiation property, we are able to get n alpha की power n u n equals to d upon d j d upon d omega into 1 upon 1 minus alpha e की power minus j omega. Simply account for factor e की power j omega, we can get n plus 1 alpha
n plus 1 u n plus 1, and after the taking DTFT of this signal we are able to get j e की power j omega d upon d omega 1 upon 1 minus alpha e की power minus j omega, and finally account for the factor 1 upon alpha, we are able to get n plus 1 alpha की power n u n plus 1. So, in this manner we can see that the frequency, we can see the application of the frequency differentiation property and time shifting property in this example, and the right hand side is multiplied by, in the last equation you can see right hand side is multiplied by the step that begins at n is equals to minus 1, and the sequence n plus 1 alpha की power n u n plus 1 is still 0 prior to n is equals to 0, and since the factor n plus 1 is 0 at n is equals to minus 1, that is shown in this equation. So, we can alternatively express this equation like this manner. Next one is the multiplication property. If we multiply two signal x 1 n and x 2 n in the time domain, we are able to get the convolution. This you can see, this is the convolution, basic formula of the convolution. इसलिए कहा जाता है टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है. With the help of this example, you can understand if we have a signal x n is a discrete time sequence which is defined for a period minus pi to pi, and if we wish to determine whether or not the time domain x n is a periodic, real, even, and or of finite energy. So, with the help of these expression we are able to get that this signal is not periodic, that is odd, and x n is a real. So, must be this is the real, and similarly with the help of the Parseval's theorem we can see that there is a some finite value after the integrating this figure we are able to get the some finite value. That is why this have some finite energy. So, thank you so much.